The national capital, more chilling details in Delhi's molester Baba case. The Patiala court, House Court, has reserved the order in this case. The accused Baba has sought for anticipatory bail to be granted to him in both the case of fraud as well as the case of molestations. The police has objected to the bail. Objecting to the bail, the Delhi police revealed in court that the UN license plates used by the molester self-styled Godman were indeed fake and that he was trying to flee with 60 lakh rupees. But now what's also come to light is another case of molestation, and this goes back to 2016. There was a case, an FIR registered back then in 2016, where one of the students back then, a 20-year-old's FIR, we're getting you excerpts from there, had said that this self-styled Godman would call me to his office and harass me. He would call me words that were derogatory, of course, and lewd, some of them being baby and sweet girl, quote unquote. He would also send me obscene messages, is what she has said in that FIR. And then she goes on to say that he tried to touch me inappropriately as well. He wanted to take me to Dubai, and he also pressurized, she was also pressurized by the self-styled Godman staff. The Baba also confiscated her phone and forced her to live alone, is what she says. Now remember, these are all excerpts from that FIR that NDTV has accessed. And then it also goes on to say that there were cameras installed. He had, and this is a comment that you will see in that FIR which we have accessed, the Baba had a vulture-like eye on me. Then the FIR content also goes on to say that she was very scared. She ran away, left all her belongings in the hostel. Imagine, a hostel is supposed to be a safe space for these girls, but in this case, it turned out that the protectors of the hostel turned out to be predators. Nupur joining me. Nupur, these are some very, very shocking facts coming out of that FIR, but we also had the hearing today in court where the self-styled Godman, his anticipatory bail plea was being heard. We believe that the order on that has been reserved. Just take us through what happened in court today, because we believe that the police was absolutely clear that he should not get anticipatory bail. Well, yes, remember there are multiple cases which involves even a fraud case against the Baba, which is linked to this trust which he was a part of in the ashram. Now, today he moved the Delhi court, Patiala House Court, seeking anticipatory bail, saying that he should not be taken into custody. And his lawyer today made this argument that this entire case of fraud and other FIRs that are being lodged against him is a conspiracy by others who are part of the trust. He named one person called Murli. He said he is the person behind all this, and he has claimed that he is being falsely framed and being targeted by members of trust. But Delhi police, on the other hand, had very serious charges about him. The Delhi police claimed that he has 2 passports and 2 PAN cards, and after the FIRs were registered against him this month, he has withdrawn nearly 60 lakh rupees from his bank accounts and shifted to other bank accounts. So several claims were made today by the court, and Delhi police has vehemently opposed any anticipatory bail in any of the case to be granted to him, because they have pressed that they would need his custody to interrogate him. Delhi court is likely to pronounce the order at 4 p.m. today, and it will be important to see that what the court decides. Important hearing at 4 p.m. Nupur will be on top of that story for you. But right now, I have the survivor's friend joining me live. We will not be taking his name because, of course, of safety reasons here. This case is also in court in terms of anticipatory bail being filed by the self-styled Godman. I was taking you through that FIR back in 2016. The friend is on your screen, and we're going to ask him some questions about what his friend went through. Thank you for joining us at NDTV 24/7. We read through some of those very disturbing details that are part of the 2016 FIR. Can you tell us what your friend went through back then? So, hi, good morning. So, 2016 में जब ये केस FIR दर्ज हुआ था, ये FIR दर्ज हुआ काफी लेट. सो उसके पहले उस फीमेल जो स्टूडेंट थी उसको काफी सारी चीजों से गुजरना पड़ा. सो स्वामी यूज्ड टू डू वन थिंग इन द न्यू बैच. ही यूज्ड टू पिक 1 or 2 गर्ल्स, एंड आफ्टर दैट देयर आर सम स्टाफ, कॉलेज स्टाफ नरेशन, एंड उसके बाद लोगों को बुलाया जाता था, बोला जाता था आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, आपको
आपका कैरियर सेटल डाउन हो जाएगा, आपको फॉरेन कंट्रीज में विजिट होगी, आपको इंटर्नशिप के लिए बाहर भेजा जाएगा, आपको अदर सर्विसेज भी अच्छी मिलेंगी, आपके मार्क्स अच्छे होंगे। और ये सारी चीज़ों को लेके लड़कियों को जब बताया जाता है तो फर्स्ट टाइम अगर कोई भी लड़का या लड़की सुनेगा इस चीज़ों को तो सोचेगा मेरा कैरियर की बात है तो मैं कैरियर को बनाना चाहती हूँ। तो उसके बाद जब वो नेक्स्ट स्टेप उठाते थे, जब वो केबिन के पास या फिर जहाँ पे भी उनकी लोकेशन थी वहाँ पे भेजा जाता था, तो वहाँ पे पता कुछ और लगता था। उनसे बोला जाता था आपको यू हैव टू कंप्रोमाइज, अगर आप कंप्रोमाइज करते हैं तो आपका कैरियर सेटल डाउन हो जाएगा, आपकी जॉब अच्छी लग जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, आपको पैकेज अच्छा लगेगा। इस तरह की चीजों को लेके इनिशिएट किया जाता था शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे उनके जो प्रोसेस था वो बढ़ता रहता था, उनको अप्रोच किया जाता था, जिसकी वजह से लड़कियों को बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होती थी। इवन उस लड़कियों को सुबह से लेकर शाम तक अपने केबिन के बाहर खड़े रखना, किसी से बात मत करने देना, किसी से अगर वो कोई बात करा तो उनके ऊपर कैमरा रखना कि अगर आप किसी से बात करो आप इनसे बात नहीं कर सकते हो, आप किसी से मिलने नहीं जा सकते हो, आप कॉलेज के बाहर नहीं जा सकते हो, अगर आपको जाना है तो आपको हमारी परमिशन के साथ जाना होगा। तो इस तरह की चीजें उन लड़कियों के साथ किया जाता था, जो कि बहुत ज्यादा अपने आप में शर्मनाक वाली बात होती थी, और किसी के लिए भी हो वो उसके अंदर ही अंदर घुटते रहते थे जी। सो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता था। तो क्या हुआ था एफआईआर के साथ? 2016 में फाइल तो हुआ था एफआईआर, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? डिड द पुलिस टेक एक्शन? डिड दिस गो टू कोर्ट? व्हाट हैपेंड? सी एक्शन एफआईआर ऑफ कोर्स बसंतपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर के बाद जो है आई थिंक चार्जशीट भी बनी थी, बट उसके बाद क्या हुआ कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद उस फीमेल स्टूडेंट ने पटियाला कोर्ट में अपने बयान भी दिए थे, उस बयान में सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड भी हैं, इवन मेडिकल भी आई थिंक सबमिट किया गया था। बट उधर से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से 2.5 साल वो स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स इस केस को लड़ते रहे, और उसके बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। देन उसके बाद वो वापस आ गए अपने होम टाउन या अपने गांव आ गए वापस, और उनके लिए डेली ट्रेवल करना या फिर डेली बसंत कुंज जाना वो पॉसिबल नहीं था। तो आप भी इस इंस्टीट्यूट के भाग रहे हैं, यू बीन अ मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। इज दिस द केस ऑफ ओनली वन पर्सन बैक इन 2016 और डू यू हैव अदर पीपल, बैचमेट्स, गर्ल्स हु हैव कम टू यू एंड सेड ये हमारे साथ भी हुआ है? मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी जो भी बैचेस थे उनमें भी हुआ है, बट काफी सारे लोगों ने केसेस को फाइल कराया। इवन अगर आप बसंतपुर थाने में जाएंगे तो इस अगेंस्ट में हैरेसमेंट के अगेंस्ट में स्वामी के ऊपर काफी सारे चार्जेस लगे हुए, काफी सारी एफआईआर्स हैं, बट पॉलिटिकल पावर होने के नाते, फाइनेंशियल पावर होने के नाते उन केसेस को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, और शायद यूनिटी नहीं थी। अगर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट जाता भी था तो वहां पे उन चीजों को दबा दिया जाता था, जिसकी वजह से वो सारी चीजें हाईलाइट नहीं हुई है। बट अभी क्या हो रहा है, यूनिटी बना के उस चीज को लेके आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये एक अहम मुद्दा आप कह लीजिए जो कि आज उभर के सामने आया है। इसकी वजह से उसकी सारी चीजें, जो और भी चीजें उन्होंने की हैं, वो सारी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं। तो ये जो एफआईआर है that we have also accessed from 2016, it says that the survivor, your friend in this case, has in that FIR also said that Baba would call me to his office and harass me. He called me baby and sweet girl. He sent me obscene messages. ये कितने देर के लिए चला है? Because of course she was being harassed, she was being threatened, she was being intimidated. बहुत दबाव में थे और बहुत स्टाफ के लोग भी perhaps complicit थे इसमें। इसमें अफकोर्स स्टाफ के लोग इन्वॉल्व थे, और ये लड़की जो छात्रा है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये इसके साथ स्टार्टिंग से हो रहा है जब से इसने कॉलेज ज्वाइन किया था, उसके कुछ मंथ के बाद से ही इसके साथ हो रहा था। बट धीरे धीरे वो चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से वो कॉलेज छोड़ के भागी भी है। वहां से भागने के बाद इनके स्टाफ ने, स्वामी के स्टाफ ने, ड्राइवर और कुछ और गार्ड्स वगैरह, उनके जो रिलेटिव का एड्रेस था वहां पे विजिट किया रातों रात। उसके बाद जो होम टाउन था वहां पे भी रातों रात अपने बंदों को भेजा है सो दैट उनको पकड़ा जाए। उसके बाद भी उनका और भी कहीं पे गांव था, गांव में जाके वो सेटल डाउन है, उसकी वजह से वो पकड़ नहीं पाया। उसके बाद फिर ये सब चीजें होने के बावजूद दोबारा फिर वो लड़की कॉलेज आई है, अपने पेरेंट्स के साथ आई है, उनको अश्योरिटी दी गई कि नहीं अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। देन उसके बाद फिर से वही सेम चीजें उसके साथ होनी शुरू हो गई। उसको ऑफिस, जैसे कॉलेज 6:30 बजे खत्म हो जाता था, ओवर हो जाता था, उसके बाद उस लड़की को कॉलेज के बाहर खड़ा रखना 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, और कोई भी रीजन नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंप्रोमाइज करने के लिए बोला जाना, उनको इस तरह से परेशान करना। तो एक फीमेल के लिए बहुत ही दर्दनाक चीज थी उस समय। वो जिस सिचुएशन से गुजरी वो सिर्फ वही बयां कर सकती है जी। और what surprises me also here is the fact, sir, that the police didn't really play an important role that it should have, the crucial role of protecting that girl despite an FIR being registered. Am I wrong in saying that she wasn't protected?
ऑफ कोर्स वो प्रोटेक्टेड नहीं थी उस समय पे, शायद इसी वजह से उसको कॉलेज से भागना पड़ा या उसको दिल्ली छोड़ना पड़ा, उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। सो शायद वो इतना ज्यादा डरी हुई थी और उस माहौल से उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था। तो So- एक ये बहुत बड़ी बात है एक फीमेल के लिए, इसकी वजह से उसको अपनी डिग्री भी छोड़नी पड़ी। So the question I want to ask here is that ये जो सेल्फ स्टाइल गॉडमैन है, उनको बाबा भी बुलाना, आई डोंट इवन वांट टू कॉल हिम अ बाबा हियर, बट दिस मैन दैट इज ऑन अ स्क्रीन एज वेल, हु इज ऑन द रन, he's had cases against him from 2016, perhaps you're also indicating here before 2016, but is it usually with economically backward class societies, people coming from there, financially incapable of sustaining themselves? Would they be his primary targets and victims? ऑफ कोर्स ये जो कॉलेज था वो एक मठ का कॉलेज था जहाँ पे बच्चों को फीस में वेव ऑफ मिलता था, जिसकी वजह से मोस्टली जो बच्चे आते भी हैं वो कोई हाई प्रोफाइल या मिडिल क्लास के लोग नहीं आते, तो वो लोअर मिडिल क्लास के लोग बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होती थी। बट ये मॉन्क अपने आप को बोलते रहते थे, बट इनका मॉन्क जो एक होता है वो एक पेशेंस होता है, काम होता है, बट ये पेशेंस बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आप इनकी कभी रिकॉर्डिंग या कभी कुछ आपको मिलता है, आप देखें कि बुरी तरीके से अपने स्टाफ को या अपने एम्प्लॉयज के ऊपर चिल्लाते थे, किसी को सैलरी ना देना, कॉलेज से निकाल देना विदाउट किसी रीजन के, और उसके बाद उनके पास तरह तरह के एलिगेशंस लगा देना स्टाफ पे। सो ऐसी भी चीजें करते थे। Can you give us one incident or two of these disturbing incidents that your friend has shared with you while she was in college? How would he harass her? What has she told you? What has she told you? तो मैं ओपन करके नहीं बता पाऊंगा, बट नॉर्मली होता क्या था कि कॉलेज के स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया उस लड़की ने, उसके बाद उसको टारगेट किया गया। टारगेट करने के बाद जो स्टाफ होता था वो स्टाफ स्वामी के बिहाफ पे जाके उनको अप्रोच करते थे कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है या मौका है, आपका कैरियर बन जाएगा, आपको मार्क्स चाहिए, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको ना फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी के बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्टेक्ट है या फिर कंपनीज के बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टेक्ट है, वहां पे प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन देके उनको अप्रोच किया जाता था। उसके बाद जब लड़कियां जाते थे उनके पास, तो उनको इनडायरेक्टली वे में उनको बोलना कि आप मेरे लिए कंप्रोमाइज करो, इफ यू डू कंप्रोमाइज दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। And if they wouldn't compromise, which of course in many cases we're hoping they didn't, that's when that cajoling would turn into intimidation, threats. प्लीज पार्डन। My question is, अगर वो दबाव में नहीं आना चाहते थे तो उसके बाद वो थ्रेटन करना शुरू कर देते थे स्टूडेंट्स को? ऑफ कोर्स थ्रेटन, देखिए मैंने बताया ना, अगर थ्रेटन एक तरह से यही है ना कि अगर आप एक स्टूडेंट को या दो स्टूडेंट को, जो भी आपके टारगेट स्टूडेंट है, अगर उनको आप सुबह से लेकर शाम तक ही आप क्लास भी अटेंड ना करने देना, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने केबिन के बाहर या अपने ऑफिस के बाहर खड़ा रखना विदाउट एनी रीजन, सो ये एक है। आप मैसेज करना, उनका पर्सनल नंबर लेके या फिर आप उनका फोन डिपॉजिट कर लेना अपने पास, अपना खुद का फोन देना, और जिसका एक्सेस भी सारा कुछ, कैमरे का एक्सेस आपके पास है, सो उनके पास कोई भी राइट्स है ही नहीं। And my last question, बहुत सारी चीजों से गुजर। जी, my last question, please pardon. Are you in touch with your friend? Now this case has come up again, it's resurfaced. Has she spoken to you recently? What does she feel? Is she feeling in a way that she's vindicated? कि उसे खुशी हो रही है कि और लोग आए हैं, more girls have come out and spoken against him, and this is, you know, in the headlines at this point. This man on our screen is on the run. What is she telling you at this point if you've spoken to her? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी अभी लास्ट 2 दिन से मेरी कंटिन्यूस बात हो रही है और शी इज हैप्पी। सो जो 2.5 साल जिसने अपने कैरियर के या अपने जीवन के बर्बाद किए हैं इनके चक्कर में, कोर्ट के चक्कर में, पुलिस स्टेशन के चक्कर में, सो उनको लग रहा है कि जिन लोगों ने ये एक्शन लिया, जो 17 लड़कियों ने लिया, उनको थैंक यू बोल रही है कि उनकी वजह से कम ये चीजें उभर के आई हैं सामने। सो एक अच्छा मौका आया जहां पे वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ और अच्छा फील कर रही हैं कि जो चीज मैं नहीं कर पाई, वो 17 लड़कियों ने मिलकर इस चीज को किया है। सो वो खुश है इस चीज को लेके, बट वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहती हैं और अपनी लाइफ में भी सेटल डाउन है। And my last question, I promise you this will be my last. Is the police in touch with your friend ever since 2016? Now that these cases have resurfaced, has the Vasant Kunj police been in touch with her? So 3 days back, Vasant Kunj police station has called her father. उनके फादर को फोन किया है, आप बोला गया कि आप अपनी एसेट्स को, जो भी एसेट्स है हमारे पास, आप वो लेके जाइए, बट उनके फादर ने उस चीज को डिनाई कर दिया है और पुलिस की तरफ से फोन आ रहे हैं उनके पास।
All right. Thank you so much for being brave enough to come on our channel. We, of course, are not disclosing your name, identity, or your friend's identity. But this is very important, viewers, for us to know what really goes on in that institute. So many questions this really throws up at this point. That man on your screen, that self-styled Godman, is on the run. He has now filed for anticipatory bail. But if the first case, and we're just assuming 2016 being the first case, perhaps it was even earlier than that, there were more cases of sexual harassment. What was the management of this institute doing? There's been an FIR, and of course it's an FIR that the management could not know of. So why has the management let this man continue for years despite that case going to the Vasant Kunj police station?